जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चितस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे अर्जुन, जिस समय क्रियाओं के संयम का योग के साथ मेल होता है, उस समय यह शरीर पवित्र प्रयाग क्षेत्र ही हो जाता है। ऐसे शरीर में जिसका मन ऐसी दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है कि जब तक शरीरपात न हो तब तक विचलित नहीं होता, उसी को तुम योग युक्त समझो। ऐसे योग युक्त की उपमा वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति लौ के साथ दी जाती है। हे वत्स, तुम अपने मन में कार्य सिद्धि की लालसा तो रखते हो, परंतु अभ्यास का कष्ट उठाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? इसमें ऐसी कौन सी कठिनता है जिससे तुम डरते हो? हे अर्जुन, तुम व्यर्थ अपने मन में इस बात का डर न करो। ये दुष्ट इंद्रियां छोटी छोटी बातों का व्यर्थ ही पहाड़ बनाकर दिखाती हैं। जरा सोचो, यदि कोई अत्यंत कड़वी औषधि इतनी गुणकारी एवं दिव्य हो जो आयु को स्थिर कर सके और शरीर से निकलते हुए प्राणों को भी लौटा लावे, तो भी जीभ उस औषधि को शत्रु ही मानती है या नहीं? इसी प्रकार जो कर्म हमारे उच्च कल्याण के लिए अनुकूल होते हैं, वे सब इन इंद्रियों को सदा कष्टदायक ही जान पड़ते हैं। अन्यथा योग साधन के समान सहज काम वास्तव में और कोई है ही नहीं। As a lamp in a windless place does not flicker, this is the simile used for the controlled mind of a yogin absorbed in the yoga of the self. The example is quite appropriate inasmuch as the mind is as fickle and unsteady as the tip of the flame. A steady mind in its upward flights will serve as a powerful searchlight to find out the hidden spiritual treasures of the self. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 19. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം യോഗയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരം പവിത്രമായ പ്രയാഗ് ക്ഷേത്രമായി മാറുന്നു. ശരീരം മരിക്കുന്നതുവരെ ഇളകാത്ത വിധം ഉറച്ച മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ യോഗയുക്തനായി കണക്കാക്കാവൂ. യോഗയിലേർപ്പെടുന്ന അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കിൻ്റെ ജ്വാലയോട് ഉപമിക്കുന്നു. അല്ലയോ വത്സ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ പരിശീലനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളത്? അല്ലയോ അർജുന, ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഭയപ്പെടരുത്. ഈ ദുഷ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പർവ്വതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു കൈപ്പേറിയ ഒരു മരുന്ന് വളരെ ദിവ്യവും ശക്തവുമാണെങ്കിൽ, ഒപ്പം അത് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മരിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും പോലും കഴിവുള്ളതാണെങ്കിൽ, നാവ് എപ്പോഴും ആ ഔഷധത്തെ ശത്രുവായി కనకాకునుండో. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ఫలసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకము 19. యథా దీపో నివాతస్థో నేజ్ఞతే సోపమాస్మృతాః యోగినో యత చిత్తస్య యుజ్ఞతో యోగమాత్మనః. ఓ అర్జున, ఏ సమయాన శారీరక క్రియల సంయమనము యోగముతో మేళవించబడుతుందో అప్పుడు ఈ శరీరము
పవిత్ర ప్రయాగ క్షేత్రమే అవుతుంది. అటువంటి శరీరంలోని అతని మనసు ఎంత దృఢంగా స్థిరమై ఉంటుందంటే ఎప్పటి వరకు శరీరం పతనం కాదో అంతవరకు కూడా విచలితం కాదు. అటువంటి పురుషుణ్ణే నీవు యోగయుక్తుడని భావించు. అటువంటి యోగయుక్తుని గాలి లేని చోట నిలిపిన దీపపు జ్యోతితో పోల్చవచ్చు. హే వత్స, నీవు నీ మనసులో కార్యములు సాధించాలనే కోరికను నిలుపుకున్నావు. కానీ అభ్యాస కష్టాన్ని సహించడానికి ఎందుకు సిద్ధపడట్లేదు? నీవు భయపడేంతటి కష్టం ఇందులో ఏముంది? ఓ అర్జున, అనవసరంగా నీవు నీ మనసులో ఈ విషయంపై భయం పెట్టుకోవద్దు. ఈ దుష్ట ఇంద్రియములు చిన్న చిన్న విషయాన్ని కూడా అనవసరంగా కొండలుగా చూపిస్తాయి. కాస్త ఆలోచించు. అత్యంత చేదైన ఔషధం ఏదైతే ఉంటో అది ఆయువును స్థిరపరచగలిగినది, గుణకారకమైనది, దివ్యమైనది మరియు శరీరం నుండి పోయే ప్రాణములు కూడా తిరిగి తీసుకుని రాగలిగేది అయినప్పటికీ కూడా నాలుక ఆ ఔషధము శత్రువుగానే భావిస్తుందా లేదా? అదే ప్రకారంగా ఏ కర్మలు మనకు ఉన్నతమైన కళ్యాణమునకు మేలుకు అనుకూలమైనవో అలాంటి కర్మలు అవన్నీ ఈ ఇంద్రియములకు సదా కష్టదాయకంగా తెలియవన్ను. లేకుంటే యోగ సాధనతో సమానమైన సహజమైన పని వాస్తవానికి మరొకటి లేనే లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణ. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6, श्लोक 19. हे अर्जुना, जेव्हा कर्मांचा संयम योगाशी जोडला जातो तेव्हा हे शरीर पवित्र प्रयाग क्षेत्र काशीच बनते. अशा शरीरात ज्याचे मन इतके दृढ आहे की ते शरीर मरेपर्यंतही ते डगमगत नाही, फक्त तोच योगामध्ये रमलेला मानला पाहिजे. योगात रमलेल्या अशा व्यक्तीची पूजा वारा नसलेल्या ठिकाणी ठेवलेल्या दिव्याच्या ज्योतिषी केली जाते. हे पुत्र, तुझ्या मनातील कार्याची पूर्तता करण्याची इच्छा करतोस, पण तू अभ्यासाचा त्रास सहन करण्यास का तयार नाहीस? तुला कोणती अडचण आहे ज्याची भीती वाटते? हे अर्जुना, या भीतीला तुला व्याप देऊ नकोस. या वाईट इंद्रियांनी अनावश्यकपणे लहान गोष्टींपासून डोंगरच बनवलेला आहे. जरा कल्पना कर, जर एक अतिशय कडू औषध इतके शक्तिशाली आणि दिव्य असेल की ते आयुष्य वाढवू शकते आणि निघून जाणाऱ्या आत्म्याला परत आणू शकते, तरीही जीव त्याला शत्रू मानते का? त्याचप्रमाणे आपल्या उच्च कल्याणासाठी अनुकूल असलेल्या कृती या इंद्रियांना नेहमीच वेदनादायक वाटतात. अन्यथा योगाभ्यासासारखे सोपे काम खरोखरच दुसरे कुठलेच नाही. जय गुरुदेव. यथा दीपो निवात्सथो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चितस्य युंजतो योगमात्मना. हे अर्जुन, जाय काल में क्रिया के संयम के योग संग मेल होइत अछि, ओहि काल ई शरीर स्वयं पवित्र प्रयाग क्षेत्र बनि जाइत अछि. एहन शरीर में जिनकर मौन एहन दृढ़तापूर्वक स्थिर भऽ जाइत छनि जे देहपात होइतो काल ओ विचलित नहि होइत छथि, एहने पुरुष के योग युक्त बुझू. एहन योग युक्त पुरुष के उपमा ओहि दीपक ज्योति सँ देल जाइत अछि जे वायु रहित स्थान में स्थित रहैत अछि, ने डोलैत अछि, ने काँपैत अछि, आ निश्चल भाव सँ सदिखन प्रकाश दैत रहैत अछि. हे वत्स, अहाँ अपना मौन में कार्य सिद्धि के लालसा तऽ राखैत छी, मुदा अभ्यास के कष्ट उठाबऽ लेल किएक तैयार नहि होइत छी? एहिमे एहन कोन कठिनता अछि जाहिसँ अहाँ डराइत छी? हे अर्जुन, व्यर्थ अपन मौन में एहन डर नहि राखू. ई दुष्ट इंद्रिय सब छोट छोट गप के अहिना पहाड़ बना कऽ देखबैत अछि. कनि सोचू, जँ कोनो बड़ तीत औषधि एहन गुणकारी आ दिव्य हुए जे आयु के स्थिर कऽ सकै आ शरीर से निकलैत प्राणों के घुरा आने, तऽ जीह ओहि औषधि के शत्रु मानैत अछि कि नहि? ओहि तरहें जे कर्म हमर उच्च कल्याण लेल अनुकूल होइत अछि ओ सब इंद्रिय के सदा कष्टदायक बुझाइत अछि, नहीं तऽ वास्तव में योग साधन एहन सहज काज आर किछ नहीं अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी,
राणा प्रताप बाग के सामने दिल्ली, सत्संग आश्रम, संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।